Hello everyone, how are you all? I welcome you to the channel Let's Crack 10 CBSC. As you all know, I am Shivam Agrawal with more than 6 years of teaching experience and more than 2000 students mentored by me for the category CBSC class 10th, 11th and 12th. So students, stay tuned to my video till the end and press the like button if you like my content of the video. And please share this video to all of your friends so that your friends can also see this video and can learn arithmetic progression. Because today we are going to finish arithmetic progression from NCERT. This is part number 5 arithmetic progression. I have already done 4 sessions of trigonometry in which I covered all the concepts and NCERT all the exercises with all the questions. So students, stay tuned to my video till the end and press the like button. So students, let's come to the introduction of arithmetic progression again. So what is arithmetic progression actually? What is arithmetic progression? I am asking to you, what is arithmetic progression? So see the video. An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference of any two successive numbers is a constant. What does it mean? कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर्स का जहां पर दो नंबर्स का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट मतलब एक सेम आना चाहिए। जैसे हम देखें बच्चों, तो इसमें 5 में से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो ये 4 आ जाता है, और अगर 9 में से भी 5 को माइनस कर लेते हैं तो भी ये 4 आ जाता है। ऐसे सीक्वेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट एक और बात मैं आपको बताता चलूं दैट एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. So I think it's very clear that what is arithmetic progression. Now we come to nth term of arithmetic progression. What is nth term of arithmetic progression? Let's discuss. So students, what is nth term? So let me make it very clear that the first term in an AP is denoted by A, and common difference, तो difference निकाला था ना अभी, that is denoted by D, and the number of terms that is denoted by n, and the nth term is denoted by an. What does it all mean? So students, आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो देखिए, जैसे कोई भी एक एपी है, मान लेते हैं 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, जिसमें कॉमन डिफरेंस यू कैन सी 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। एंड इफ वी से दैट फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी, अगर बच्चों हम लोग ऐसे इसमें 2 प्लस करेंगे तो रात भी बीत सकती है, अगर और ज्यादा 300 400 टर्म हमें निकालना पड़ जाए। तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे ऐसे केस में हम लोग? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। दैट मीन्स A20 is equal to A plus 19D according to this formula. And we know what is A is 3. So put here 3 and 19 into D is 2. So this becomes 19 to the 38 and this becomes 41. So 41 is the correct answer. You can proceed the AP and you will get that you will get the 20th term is 41. So this is the basic concept of arithmetic progression. Now let's come to the sum of n terms of AP. We have already discussed all these topics in the previous video, but now again I am discussing because हो सकता है कोई नया बच्चा भी आज इस वीडियो पे आया हो, उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो बच्चा, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a plus n minus 1d. This is the formula of sum of n terms of AP. One more formula is there, n upon 2a plus l. L stands for last term. So this formula also you can use when you don't know common difference. You know what you need to know before applying this formula. You need to know n, and you need to know last term, that is n, an, and you can also say l, and one more first term. So you know these three things: first term, last term, and the number of terms. Then you can apply this formula and you can get your answer. So let's come to the get subscription topic. How to take the subscription of an academy. So let me tell you students why to take the subscription. First let me discuss why to take the Unacademy subscription. हमें Unacademy subscription लेना ही क्यों? तो देखो, Unacademy subscription लेना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, daily live classes with the top educators, not the general educators. Here the educators are top
we can say he have more than 5 years, 10 years, 20 years, 15 years, like this they have experience, and they know how to solve question in 1 minute, 2 minute with easy and amazing tricks. So to know amazing and easy tricks of top educators, you can take the subscription of Unacademy. Here you get the live test and live quizzes daily. Daily you will get many live tests, many quizzes, and you can evaluate your you can analysis your performance from here. And you get the structured course, not only mathematics, not only science, you get all the subjects in one subscription. एंड देन वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप पूरा दिन भी चला सकते हैं, पूरी रात भी चला सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आएगा कि आपकी ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया है। आपको जितना एक्सेस करना हो आप उतना अपनी डिवाइस से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि सर हमें सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। And after installing this app, select the goal here, like CBSE class 10, CBSE class 9, whatever your goal, and then click on get subscription. And after that, let me tell you the rates. बच्चों अगर आप लोग मान लीजिए 6 मंथ्स का परचेस करते हैं तो ये वैसे 10,000 का है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड जो कि SAGYT, यहाँ लिख देता हूँ SAGYT, ये जो बच्चों मेरा कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है, और ये रह जाता है सिर्फ 9,000 का। अगर आप बच्चों ये 24 मंथ्स का मीन्स 2 इयर्स का पैकेज परचेज करते हैं, then you get 25,000, but after applying my code you get it 22,500 rupees. So you can see how much bonus you are getting. In only 938 rupees per month you are getting the full subscription of Unacademy and getting all the subjects. You are getting the mentors of all the subjects, you are getting the test series, live tests, everything you get here. So students, I am suggesting you to take the subscription of Unacademy, and you can access all the content and you can score very good marks in your board exams. तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग परचेस करते हैं तो प्लीज 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 मेरा ये जो कोड है इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसके बिना आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। एंड आफ्टर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो अनअकैडमी का हमारा प्रोफाइल है ना, इसको जरा ध्यान से देख लो। क्या नाम आपको सर्च करना है अनअकैडमी पर जाकर के? शिवम अग्रवाल। और ऐसे ही नहीं सर्च करना है, पहले अपना गोल सर्च कर लेना है यहाँ पे CBSE क्लास 10, एंड इसके अंदर एक कैटेगरी आपको मिलेगी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स सिलेक्ट करने के बाद बच्चों ये फॉलोअर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना 31, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो इसके फॉलोअर्स को बढ़ा दो, यहाँ पर फॉलो कर लो बच्चों। आप भले ही वीडियो को लाइक मत करो अगर आपको पसंद ना आए, लेकिन यहाँ पर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर बेटा मेरी डेली 9 PM पर क्लास होती है, जिसमें अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी ट्रिग्नोमेट्री में फियर है वो फ्री में, कोई पैसा नहीं देना आपको, अभी फ्री में यहाँ पर आ सकते हैं और मेरे क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, और अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फियर हमेशा के लिए बच्चों आप निकाल सकते हैं। तो आ रही है ना बात आपको समझ में? रात में 9 बजे मीन्स 9 PM पर डेली क्लास चलती है बेटा अनअकैडमी ऐप पर। आज भी आ सकते हो आप रात में, आज भी क्लास आपको वहां पर मिल जाएगी बच्चों। प्रोफाइल मेरा सर्च कर लेना, यही वाला बेटा फोटो वहां पर आपको मेरा लगा मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 की तरफ चलते हैं, और अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो ध्यान से देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ AP in which D is equal to 7. So what is D? Wait, let me change the color of the pen. Let me take the white color so that you can see it clearly. So D is equal to 7 and A22 is equal to 149. What we have to find? We have to find the S20. No problem. A plus 21D is equal to 149. So what you will get? A plus 21 into D की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? 7. So A plus 7 to the 14, 147 is equal to 149. So A is equal to 149 minus 147, and you will get the answer. A की वैल्यू बच्चों 2 आ गई है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 2 आ गया। अभी हमको क्या निकालना है? S22। क्या हो जाएगा? 22/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n मतलब 22 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? 7। ये फॉर्मूला कहाँ से लगा दिया? एक बार यहाँ लिख लो बेटा फॉर्मूले को, n/2 2a plus n minus 1d. This is the formula which we applied in this question. And after applying this formula, what we will get? 11
4 plus 21 into 7. So what is the answer? 11 plus 4 plus 7 under 7, 147. 11 into 149. तो 11 की बच्चों जब हम 149 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। सॉरी 149 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 151 आएगा। वेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 151. लेट मी टेक दिस व्हाइट कलर, 151. And after doing the multiplication of 11 and 151, what we will get? Tell me in comment section. And यहाँ पर मल्टीप्लाई भी इसका बच्चों देख लेते हैं। 11 1 11 कैरी लगा, यहाँ पर 1 हमारे पास, 11 5 55 और 1 6 कैरी लगा 5 और 11 plus 5 6 1661. So बच्चों you can check your answer in answer sheets. 1661 is the correct answer of this question. So as simple as that. कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, लेकिन ये सिंपल उसी को लगेगा जो सारे वीडियोस को देखेगा और उनको शेयर भी करेगा और साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेगा। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट एपी में बेटा एक बार वीक रह गए तो आपको कोई एपी जिंदगी में सिखा नहीं पाएगा। और बोर्ड्स में बेटा अच्छा खासा वेटेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी रखता है, हो सकता है आप वो वेटेज गेन ना कर पाए। तो बेटा लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, that is S51 we have to find, and A2 is equal to 14 and A3 is equal to 18. You are getting my point or not? A2 is equal to 14 means second term beta is 14 और third term 18 है। And what he is asking? He is asking the sum of 51 terms. So let me tell you one thing, whatever we have to find, but we have to first find A and D. Means we must know the first term and the common difference. After knowing first term and common difference, we can find any term, we can find any sum, whatever we need we can find. But firstly we need A and D. So let's find A and D. A2 is equal to 14 means A plus D is equal to 14, and A3 is equal to 18 means A plus 2D is equal to 18. And after solving these equations, what we will get? We will get minus का D equals minus का 4. That means D is equal to 4. देखो यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको देता हूँ बेटा, अमेजिंग ट्रिक यहाँ पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ पर कई बार डी निगेटिव आ जाता है, हो जाती है गलती, किसी से भी हो सकती है। तो देखो डी कभी भी निगेटिव आएगा ना तो एक बात अपनी एपी की तरफ देख लेना, एपी आपकी डिक्रीजिंग होनी चाहिए। फिर अब यहाँ एपी कैसी है? सेकंड टर्म तो आपको दे रखा है 14, थर्ड टर्म दे रखा है 18, इसका मतलब एपी तो इंक्रीजिंग है। जब एपी इंक्रीजिंग है तो हमेशा याद रखो डी फिर आपका कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये बात इसलिए बता दी कि कहीं अगर मिस्टेक कर रहे हो बच्चों तो उसको आप अपनी मिस्टेक को पकड़ पाए। डी की वैल्यू 4 आ गई, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ डी in equation number 1. So what you will get? A plus D is equal to 14, A plus 4 is equal to 14, and A is equal to 10. Now we have A also and D also, and what we have to do? We have to find the sum of 51 terms. So what we have to do? We have to apply the formula 51 upon 2, 2 into A, what A, 10 plus n minus 1 means 50 into what is D, 4. So what is this? 51 upon 2, 20 plus 200. So it becomes 51 upon 2 and 220. So it becomes 110. तो बच्चों हमें क्या करना है? 51 और 110 की क्या करनी है? अभी हमको 51 और 110 की मल्टीप्लाई करनी है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है कि हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 110 की 55 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो तो ऐसे ही लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। 11 5 जा 55 कैरी लगा 5 एंड 11 5 से 55 एंड ये हो गया बच्चों हमारे पास 6050। मल्टीप्लाई सही है बच्चों? टेल मी, ये मल्टीप्लाई सही है कि गलत है? ये मल्टीप्लाई बच्चों गलत है, ध्यान से देख लो क्या आएगी मल्टीप्लाई। दोबारा से गलती करता हूं तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताया करो, मैं आपका फोकस चेक करने के लिए छोटी छोटी मिस्टेक्स करता हूं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा कि आपका फोकस बच्चों यहाँ पर नहीं है। क्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई? जल्दी से करके बताओ मुझे क्या मल्टीप्लाई आएगी इसकी। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। वरदान सिंह, गिव मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन? उत्कर्ष, यू आर द डेली व्यूअर ऑफ माय वीडियो। आप लोग डेली आते हैं बेटा वीडियो पे, बहुत अच्छा लगता है देख करके। स्मृति बंसल, यू कैन ऑल्सो टेल मी व्हाट विल बी द मल्टीप्लाई ऑफ 51 एंड 110? क्या आएगी बेटा मल्टीप्लाई? 5610। व्हाट वाज द मिस्टेक? अगेन सी 0, 11 5 से 55 कैरी लगा 5, 11 5 से 50 नहीं होता है, 11 5 से 55 होता है, एंड 55 प्लस 5
व्हाट इज 5610? ध्यान से देख लो बच्चा लोग, ध्यान से देख लो क्या मल्टीप्लाई आ रही है, गड़बड़ मत करना बाद में वहां पर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289. देखो जरा, S7 कितना है? 49 है, और S17 कितना है? 289 है. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यहां तक. अब S7 का मतलब क्या हो गया भाई? 7/2 2a plus 6d is equal to 49. So what it becomes? 2a plus 6d is equal to 49 into 2/7. So it becomes 14. तो a plus 3d इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 7 आ गया. नंबर 1 डाल के इसको छोड़ दो यहाँ पर. यहाँ पर क्या आ गया? 17/2 2a plus 16d is equal to 289. एंड 2a plus 16d क्या हो गया यहाँ से बच्चों? 289 into 2/17. 17 से 17 का कटता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो हो गया 34. 2a plus 16d. So what we get? a plus 8d is equal to 17. ये दो इक्वेशन बच्चा लोग अपने पास आ गई ना, इसको संभाल के रखो. अब इनको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, a plus 3d 7 है, और a plus 8d कितना है? 17 है. माइनस कर दो, कैंसिल हो गया. यहाँ माइनस कर लो, माइनस का 5d हो गया. यहाँ माइनस कर लो, माइनस का 10 हो गया. d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू 2 आ गई. इस d की वैल्यू को बच्चा लोग क्या करो? पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट वी विल गेट? a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है बच्चा लोग? a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई? 1 आ गई. क्या आ गई बच्चों? हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है. यहाँ पर बच्चों लोग देखो ध्यान से, 51 है, इसी वजह से वो बार बार हमारी मल्टीप्लिकेशन गलत आ रही थी बच्चों की. सर ये मिस्टेक है इसके अंदर. सो लेट्स कम टू a इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया. अच्छा, a इज इक्वल टू 1 आने के बाद और d इज इक्वल टू 2 आने के बाद आपको हमको क्या करना है? हमको तो SN निकालना है, मतलब n की फॉर्म में आएगा. ये हो गया n/2 2a प्लस n-1d. तो ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर n कितना है? यहाँ पर चेक करके बताओ, n कितना है? पता ही नहीं है तो बताओगे कहाँ? a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, मतलब 2, प्लस n हमें पता ही नहीं है बच्चों. एंड व्हाट इज d? सो व्हाट वी हैव? n/2 2 प्लस 2n-2. ये तो बच्चों कैंसिल हो गया. यहाँ से क्या आ गया? n/2 इंटू 2n. तो ये हो गया बच्चों n स्क्वायर. यानी कि इस AP का जो सम है वो n स्क्वायर. अच्छा, SN का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो. इस n स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो AP है, इसमें आपको अगर 4 टर्म्स का सम चाहिए तो वो 16 होगा, 4 का स्क्वायर. 5 टर्म्स का सम चाहिए तो वो 25 होगा. 6 टर्म का चाहिए तो वो 36 होगा. ये बेटा इसका यहाँ पर सिंपल सा मतलब है. इसके बाद बच्चों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 10. शो दैट A1 A2 एंड A2 A3 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो. क्या AN दिया हुआ है जरा देख लेते हैं बच्चा लोग हम लोग. AN हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? 3 प्लस 4n. क्या दे रखा है? 3 प्लस 4n. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी यहाँ पर क्या करना है? A1 निकालना है. A1 कैसे आएगा? 3 प्लस 4 दैट इज 7. फिर क्या करोगे? A2 निकाल लोगे. A2 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट मीन्स 11. A3 कैसे निकाल लोगे यहाँ पर? 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट मीन्स 15 आ गया. आगे मत निकालो, इतना काफी है बच्चों. अब पहले तो आपको शो करना था ना कि शो करो ये AP है या नहीं है. तो देखो कैसे शो होगा अब इसमें. A2 माइनस A1 निकालो. क्या आ जाएगा? 15 माइनस 11, सॉरी 11 माइनस 7 दैट इज 4. A3 माइनस A2 निकालो. कितना आ जाएगा? 15 माइनस 11 दैट इज. यहाँ लिखो बिकॉज A2 माइनस A1. यहाँ आपको मैं मेथड भी बता रहा हूँ वो कैसे करना है वहां पे प्रेजेंटेशन. तो ये हो गया बच्चों, देयरफॉर इट इज एन AP. क्योंकि हमें बोर्ड्स में नंबर स्कोर करने के लिए बच्चों प्रॉपर स्टेटमेंट्स भी लिखने पड़ते हैं. तो ये AP हो गया. फिर हमसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो S15 निकाल लेते हैं. S15 कैसे निकालेंगे? 15/2 2a प्लस n-1d. ये तो फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको. तो 15/2 लगा दो. a की वैल्यू कितनी है? 7 थी ना फर्स्ट टर्म, देखो 7 था. और d कितना था आपके पास बच्चा लोग? n15 हो गया. d कितना था आपके पास? 4. ये हो गया 15/2 14 प्लस 14 4 का कितना होता है? 56. तो यहाँ पर देख लो बच्चों 15/2 और ये हो गया यहाँ पर हमारे पास कितना?
10 और ये हो गया 70। सो व्हाट वी गेट 35। 15 इंटू 35। अब बच्चों 15 और 35 की मल्टीप्लाई जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि कितनी आएगी। 15 और 35 की मल्टीप्लाई मुझे आप लोग करके बताइए। वरदान, उत्कर्ष, स्मृति, काफी सारे बच्चे डेली आ रहे हैं, डेली आप लोग रिस्पॉन्स भी देते हैं बेटा। श्रेया बताइए 15 इंटू 35 की मल्टीप्लाई कितनी होगी। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स ऑल्सो। तो बताओ 15 और 35 की मल्टीप्लाई कितनी होगी। किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी। देखो 15 और 35 की मल्टीप्लाई कितनी होती है बच्चों, 525। वरदान सिंह इज सेइंग 525। वेरी गुड वरदान बेटा, 525 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, अभी तो इसी में बच्चों एक सेकंड पार्ट और दे रखा है हमें, इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे बच्चा लोग हम लोग। लेकिन देखो बच्चों वीडियो को शेयर करते चलो जिससे कि और बच्चे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख सकें। तो देखो बच्चों इसमें हमें ए एन क्या दे रखा है, 9 माइनस 5। ए वन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 दैट इज 4। ए टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस का 1। ए थ्री क्या हो जाएगा, ये एपी देखो डिक्रीजिंग एपी आ गई है, 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 15 दैट इज माइनस का 6। यहाँ लिखो जरा बच्चों, 4 माइनस का 1 माइनस का 6 डॉट डॉट। आपको शो करना है कि ये एपी है। एपी शो करने के लिए फिर वही काम करो, ए टू माइनस ए वन निकाल लो, माइनस का 1 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 5। ए थ्री माइनस ए टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस का 1 दैट इज माइनस का 5। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखो इट इज एन एपी। क्यों एपी है बच्चों ये, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड, S15 वी हैव टू फाइंड। व्हाट इज S15, 15 अपॉन 2, 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 मीन्स 15 माइनस 1। एंड डी कितना है बच्चों हम लोग के पास, इसमें माइनस का 5 है। तो ये हो गया 15 अपॉन 2, 8 प्लस ये हो गया बच्चों लोग हमारे पास 14 इंटू माइनस का 5। तो ये हो गया, यहाँ पर बच्चों सॉल्व कर लेंगे इसको, 8 माइनस का 70। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 15 अपॉन 2 माइनस का 60, आई थिंक 62 आएगा है ना। चेक कर लो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 62, वाइट कलर लेट मी चूज, ये हो जाएगा माइनस का 62। ये हो गया बच्चों लोग यहाँ पर 31। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार हम लोग, 1 पेन। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, आप देखिए यहाँ से माइनस का 15 इंटू 31 मल्टीप्लाई का। बच्चों फिर से आपकी वेट कर रहा हूँ, कमेंट करके बताइए 15 और 31 की मल्टीप्लाई कितनी होगी। ये हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइनस का 465। क्या आएगी बच्चों मल्टीप्लाई, माइनस का 465। मल्टीप्लाई भी देखो बच्चों मैं कर दे रहा हूँ आपके सामने। ये हो गया 5 1 5, 5 3 15 एंड ये हो गया 31 प्लस कर लो, तो ये हो गया 465। तो 465 माइनस का इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से यहाँ तक। अगर समझ में आ रहा है बच्चा तो शेयर जरूर करो जिससे कि और आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखें। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ शेयर जरूर करो, चाहे लाइक मत करो तब भी कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। इस पर बच्चों जितने स्टार कम पड़े उतने लगा लेना, क्योंकि एक पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था वहां हमें एन दे रखा था और हम एस एन पे जा रहे थे, वो तो सिंपल हो जाता है, 1 2 3 पुट कर लेते हैं। लेकिन जब एस एन से आपको ए एन पे जाना होता है तो थोड़ा सा मामला क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखो बच्चों ध्यान से, अब ध्यान से देखना बच्चों तभी समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आने वाला, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो अब ध्यान से, एस एन कितना दे रखा है आपको, 4n माइनस एन, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसके बाद आपको इसमें S1 फाइंड करना है। S1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। फिर आपको इसमें S2 फाइंड करना है। S2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज, सॉरी 8 माइनस 4 दैट इज 4। S3 क्या हो जाएगा इसमें, S3 हो जाएगा 12 माइनस 9 दैट इज 3। अब कोई कहेगा सर ये 3 4 3 एपी तो बनी नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल बनेगी भी नहीं, क्योंकि A1 A2 A3 नहीं है, ये S1 S2 S3 है। ये पहले टर्म का समय, ये दूसरे टर्म का समय और ये तीसरे टर्म का समय। फर्क है थोड़ा सा, ध्यान से समझना बात को, A1 A2 A3 नहीं है। आप समझो बात, A1 कैसे आएगा, A1 जो होता है वो जो फर्स्ट टर्म का सम होता है वही A1 हो जाता है, वो 3 हो जाएगा। A2 कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो
तो सेकंड दो टर्म्स के सम में से पहले टर्म का सम घटा दो तो दूसरा टर्म बच जाता है, यानी कि वो कितना आ जाएगा 4 माइनस थ्री दैट इज 1। A3 कितना आ जाएगा S3 माइनस S2, मतलब माइनस का। इसको चेक करके बताओ कि ये AP है या नहीं है। तो ये 1 माइनस थ्री निकालो तो माइनस का 2 आएगा, माइनस वन निकालो तो भी माइनस का 2 आएगा। आ रही बात आपको समझ में? इसका मतलब बच्चा लोग ये क्या है, ये AP है। क्यों AP है? क्योंकि इसमें आपको दोनों तरफ माइनस का 2 आपको आता हुआ दिख रहा है बच्चों। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब उसने हमसे पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमने निकाल दिया था, सॉरी हाँ S1 ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया था 3। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो भी हमने निकाल दिया था S2 4। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, वो भी हमने निकाल दिया 1। फिर कह रहा है सिमिलरली फाइंड दैट थर्ड टर्म, वो भी हमने निकाल दिया था माइनस का 1। अब कह रहा है टेंथ टर्म और nth टर्म निकालो, तो पहले चुपचाप nth टर्म निकाल लो अपना। nth टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। इसका मतलब a कितना है हमारे पास ऑलरेडी 3, प्लस n तो हमें पता ही नहीं है बच्चों, और d कितना है हमारे पास माइनस का। तो ये क्या हो गया 3 माइनस का 2n प्लस का 2, दैट इज 5 माइनस 2n। इसका बच्चों क्या आ गया, आप चेक कर लेना, 5 माइनस 2n इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपकी nth टर्म आ गई। अभी आपको 10th टर्म भी चाहिए, तो an आपके पास आ गई है 5 माइनस 2n, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या लगा लो, 10 लगा लो। तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। ये क्या आ गई आपकी 10th टर्म आ गई, क्योंकि उसने आपसे बच्चों 10th टर्म भी निकालने के लिए कह दिया। अच्छा, अब जब एक बार an आ गई ना, तो आपको वो कोई भी टर्म निकालने के लिए दिया, आप हर टर्म निकालने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके पास an आ गई। जब आपके पास nth टर्म आ जाती है, तब आप कोई भी टर्म बच्चों वहां से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले nth टर्म निकाल दिया करो। समझ आया? कोई फिर से समझा दूं, फिर से समझ लो। देखो Sn हमें दिया हुआ था, हमने इसमें क्या किया, S1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? S1। S2 निकाल लिया, S3 निकाल लिया। कैसे निकाला? 1 2 3 n की जगह पे पुट कर लिया। फिर हमने क्या कहा कि A1 जो होगा वो S1 के इक्वल होगा 3, A2 जो होगा वो S2 माइनस S1 होगा मतलब 1, A3 जो होगा वो S3 माइनस S2 होगा मतलब माइनस का 1। समझ रहे हैं बच्चों बात आप? अब उसके बाद देखो, अब हमें जब हमें ये चेक करना था कि AP है यानी, चेक तो कर ले, क्या पता गलत हो गया हो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा तो माइनस का 2 आ गया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करा तो भी माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब ये AP बच्चों है। फिर हमने यहाँ पर nth टर्म कैलकुलेट कर लिया a प्लस एन माइनस वन डी से, और उसके बाद बच्चों 10th टर्म कैलकुलेट कर लिया। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एक बार और समझा दूं बेटा मैं। देख लो कमेंट करके मुझे बता दो, तो एक बार और समझा दूंगा मैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक आ रही हो। आई एम वेटिंग बच्चों, आप देख लो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं आपको फिर से भी समझा सकता हूँ क्वेश्चन। नहीं आ रही है तो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। 40 क्या है आपका, n है। पहले जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया करो, n है। डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, यानी कि पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18, चौथा नंबर 24 डॉट 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 डॉट। ए की वैल्यू कितनी 6, डी की वैल्यू कितनी 12 माइनस 6, अरे तो वो भी तो 6 ही आ गई ना। एन की वैल्यू कितनी 40, निकाल दो सम एस 40, क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2, 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस वन, मतलब 40 माइनस वन, और डी कितना है 6। तो ये हो गया 20, ये हो गया 12 माइनस 39 इंटू 6। तो ये हो गया 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, कैरी लगा 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होता है बच्चों 23। यहाँ पर बच्चों उसको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 246 इंटू 20। और जब बच्चा 246 की 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4920। 4920 इज द करेक्ट आंसर। इसका मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लो बच्चों, मुझे तो ये बार बार करवा करवा करके याद हो चुका है इसका क्या मल्टीप्लिकेशन आता है। देख लो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और ये 9, 2 2 जा 4, ये 0 एक आगे था, तो बच्चों ये आ गया 4920। ऐसे ही एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो कि आपको भी बच्चों एनसीईआरटी याद होने लगे, आंसर्स आपको याद होने लगे। मुझे तो आधे से ज्यादा आंसर रट चुके हैं एनसीईआरटी के। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बार मैंने अपने टाइम में भी, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में भी बहुत बार प्रैक्टिस की थी, और उसके अलावा आप लोग को इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी के आंसर्स तो अब याद होने लग गए हैं। तो ध्यान से देख लो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का क्या है बच्चों, 8 मल्टीपल्स 15 के मल्टीपल्स निकालने 8 के, तो एन हो गया 15, और एपी क्या बन गई 8 16 24 डॉट 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 डॉट। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 8, डी की वैल्यू कितनी हो गई 8, अच्छा एन की वैल्यू कितनी है 15 है। तब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है बच्चों। तो लगा दो जल्दी से S15, क्या फॉर्मूला लगेगा 15 अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ये हो गया 15 अपॉन 2, 2a का मतलब क्या हो गया 16 प्लस एन माइनस वन मतलब 14 इंटू 8, 8 फोर द 32, 11, 112 प्लस 16, और ये हो गया 15 अपॉन
तो ये हो गया बच्चों 15/2, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2 6 जा 4 जा। तो यहाँ पर क्या रखूं, 15 × 64। देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी। 15 4 जा 60, कितना है 15 4 जा 60, कैरी लगा 6, 15 6 जा 90, एंड 19 90 + 6 960। तो इसका सम बच्चों कितना आ गया 960। ठीक है ना बच्चों। काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की कमेंट सेक्शन में, बच्चे बार बार कई बार मुझसे पूछ चुके हैं, आज मैं जवाब दे देता हूँ। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स का फॉर्मूला तो आपने बता दिया अच्छे मार्क्स लाने का, लेकिन साइंस में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाए। तो बच्चों वो भी एक बार आप लोग सुन लो। साइंस में जो मैंने बच्चों नोटिस की है चीज, आप लोग के मार्क्स कटते हैं फिजिक्स में। कहां पर आप लोग के मार्क्स कट जाते हैं कई बार, फिजिक्स में। अब आपको करना क्या है बच्चों, आप लोग एक जो गलती करते हो ना, फिजिक्स में सबसे ज्यादा पार्ट होता है आपका न्यूमेरिकल, जो कि डिपेंड होता है आपकी मैथमेटिक्स के ऊपर। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देख लो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है। लाइट है, लाइट के अंदर जब मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला आ जाता है आपका, तो वहां पर क्या है, सारा का सारा कैलकुलेशन है। सर्किट डायग्राम में पैरेलल और सीरीज में जब आप लगाते हो, उसके बाद जब हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, क्या है, सारा कैलकुलेशन है। तो वही बात यहां से भी निकल करके आ गई कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, तभी बच्चों आपके फिजिक्स में स्कोर बढ़ पाएगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, दूसरी एक जो चीज मैंने देखी है, आप लोग कहां पर अपने नंबर कटवाते हो साइंस के अंदर, वो भी देख लो। सबसे पहले जो मेरे हर वीडियो में एक टॉपिक रहता है, एक मेरा और टॉपिक रहा है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू स्कोर 100 on 100 इन मैथमेटिक्स। वहां पर मैंने एक टॉपिक आपको उसके अंदर बताया था, चूज योर मेंटोर वाइजली। अपने मेंटोर को बहुत ध्यान से चुनो। अब हम लोग गलती क्या कर जाते हैं साइंस में कई बार, जो हमारा साइंस का टीचर है, अच्छा ये एक फैक्ट भी है, हमारा साइंस का टीचर तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हो सकता है वो बायो का एक्सपर्ट हो सकता है वो फिजिक्स का एक्सपर्ट हो सकता है वो केमिस्ट्री का हो, और हो सकता है चलो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का कंबाइंड हो, तो बायो का नहीं होगा। 90% केसेस में ऐसा देखने में आता है बच्चा लोग। आप लोग की क्वेरी है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ आज क्लियरली। देखो 90% देखने में आता है कि जो भी आपका साइंस का मेंटोर है ना, वो क्या करता है, अब मजबूरी तो ये है क्योंकि आप 10th क्लास में अलग से पढ़ नहीं सकते, तो वो आपको फिजिक्स भी लेता है, केमिस्ट्री भी लेता है। अच्छा बायो नहीं आती है, तो बायो के लिए क्या करता है, या तो अपने लड़के से पढ़वा देगा आपको, अपनी बेटी से पढ़वा देगा, अपने वाइफ से पढ़वा देगा, अपने हस्बैंड से पढ़वा देगा। लेकिन आपका बच्चों यहाँ पे करियर का सवाल है, तो आपको एक ऐसा मेंटर ढूंढना है, या तो उसको तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कमांड हो, वरना आप उसको बोलो कि सर हम आपसे केवल और केवल बायो पढ़ लेंगे, हम केमिस्ट्री कहीं और पढ़ लेंगे, या हम केमिस्ट्री अन अकेडमी से पढ़ लेंगे, या फिर हम केमिस्ट्री अपने आप करने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर के चक्कर में हम लोग कई बार पढ़ जाते हैं कि फिजिक्स इनसे पढ़ लो, बायो हमसे पढ़ लो, केमिस्ट्री हमसे पढ़ लो, और कुछ मत पढ़ पाओ। अपना साइंस का इस बार का रिजल्ट बहुत खराब गया था, आप लोगों ने देखा होगा इस बार जो 2020 का, यहाँ पर काफी सारे मेरे अपने बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो उनका साइंस का रिजल्ट बहुत खराब गया। कारण क्या था, बाद में जो एनालिसिस करा गया वो क्या करा गया कि ज्यादातर बच्चे बोले सर फिजिक्स में हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स कट गए, सर बायो तो हमने पूरी कर ली थी लेकिन फिजिक्स में मार्क्स कटवा बैठे। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले तो याद रखो कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। आपको कैलकुलेशन जो होता है ना, सिंपल वाला कैलकुलेशन जो हम गलत करते हैं, एलसीएम हो गया, हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग हो गई, ये पहले तो मजबूत करो। इसके बाद अपना मेंटोर चूज करते समय बहुत ध्यान रखो। और साइंस में भी जो मैं, क्योंकि साइंस टीचर नहीं हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार मुझसे टिप्स मांगते हैं, तो जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको टिप्स बता देता हूं। सबसे पहला तो ऐसा टीचर आप ढूंढो जो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में उसका बहुत अच्छा कमांड हो, तीनों सब्जेक्ट्स में वो आपको पढ़ा पाए। अगर कोई टीचर आपको ये बोल रहा है कि बेटा बायो तो मैं पढ़ाऊंगा और फिजिक्स आप इनसे पढ़ लेना और केमिस्ट्री आप मेरे से इनसे पढ़ लेना, बिल्कुल नो बोल देना। अगर आप बोलो तीनों सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हो तो हम पढ़ेंगे, वरना हम खुद अरेंज कर लेंगे, हम खुद मैनेज कर लेंगे, आपकी जरूरत हमें नहीं है। ये अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ लो, दूसरा फिर वो आपका एक सब्जेक्ट जो बच्चों कमजोर रह जाता है ना, वो आपके मार्क्स बोर्ड में कटवा देता है। तो इसको बहुत ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, साइंस में मैं बता दूं अपनी तरफ से कि आपको एनसीईआरटी वहां पर भी करनी है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाओ, सैंपल पेपर्स आने का टाइम हो गया है, सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस लगाओ बच्चों। ये सब जब आप चीजें इसके अंदर करोगे, और बायो में अच्छा कमांड रखो, बट फिजिक्स में साथ में न्यूमेरिकल पार्ट को मत छोड़ो, क्योंकि अधिकतर बच्चों का न्यूमेरिकल पार्ट इसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो मुझे लगा बेटा मैंने टिप दे दिया, काफी सारे बच्चे क्योंकि मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चंस, ऐप अनअकैडमी लाइव क्लासेस में भी क्वेश्चंस आ रहे थे, यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने आपको ये बात बता दी है बच्चों आज।
पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स करके आप लोगों ने पूछा था, तो आई होप कि आपको बेटा आंसर इसमें मिल गया होगा मेरा। तो अब देखो बच्चों, सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है। सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 49, क्योंकि लास्ट नंबर तो 49 ही आएगा ना बेटा इसके अंदर। तो अब देख लो ध्यान से, आपको क्या निकालना है, पहले तो ये पता करो कि इसमें नंबर्स हैं कितने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बी। ए एन कितना है 49, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 2। तो हो गया 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। ये टू नीचे ले आओ, क्या हो गया 24 इक्वल एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 25। समझ आया बच्चा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एस 25, क्योंकि आपको पता चल गया 25 टर्म्स है। 25 अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब ये हो गया 25 अपॉन टू, ये हो गया 2 इंटू वन प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन कितना है बच्चों 25 माइनस वन, 24 इंटू डी कितना था 2। ये हो गया बच्चों 50 आपके पास, और ये हो गया 25 अपॉन टू। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 25, एंड द आंसर जो बच्चों हमारा आया वो कितना आ गया 625। आई होप बच्चों कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो मैंने आपको टिप्स बताए साइंस में भी, जिससे कि आप अपना परसेंटेज बढ़ा सके, वो टिप्स भी आपके समझ में आए होंगे। देखो सारे सार एक ही है, हर चीज का सोल्यूशन एक ही है। जो आपका मेंटोर है ना, मैं मेंटोर को एक टीचर नहीं कहूंगा, वो आपका मेंटोर आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है जिससे आप बच्चों सीखते हैं। बट जो भी आपका मेंटोर है या जो भी मैं कहूँ आपका गाइड है, उसको सिलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखना। हम हर चीज को तो सिलेक्ट करते हैं, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, हम 6-6 बार ट्रायल रूम में जाकर के चेक करते हैं, यहाँ से छोटा तो नहीं है, यहाँ से बड़ा तो नहीं है, इसका कलर कैसा है, इसका ये कैसा है, इसका वो कैसा है, इसका स्टफ कैसा है। लेकिन मेंटोर सिर्फ ऐसे ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा है इसलिए पढ़ने चले जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज आ गए इसलिए उसके चैनल पर सब्सक्राइब करके उससे पढ़ने लग जाते हैं, बिना ये चेक करे कि वो हमें पढ़ा पाएगा या नहीं। क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, अनअकैडमी हुआ, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम क्यों नहीं आते जहां पर वेल एक्सपीरियंस टीचर हमको पढ़ाएंगे। क्यों हम ऐसे यूट्यूब पे पढ़ने लगते हैं, हमारा दोस्त जा रहा है इसलिए चले जाते हैं, हमारा पड़ोसी जा रहा है इसलिए चले जाते हैं, हमारे घर के पड़ोस में इसलिए चले जाते हैं, हमारे स्कूल में काफी समय से पढ़ा रहे हैं इसलिए चले जाते हैं। काफी समय से पढ़ा रहा है इसका मतलब नहीं है बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस 25 बार है। 25 साल का एक्सपीरियंस मत काउंट कर लेना उसको गलती से भी। 1 साल का एक्सपीरियंस 25 बार लिया हुआ, आप कहते हो 25 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं। चाहे 6 साल का एक्सपीरियंस हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो, बट फ्रेश एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेश एक्सपीरियंस का मतलब है कि हर साल आप अपने आप को अपडेट करें, अपनी नॉलेज को चेंज करें। ये नहीं कि एक ही चीज जो हमने 25 साल पहले पढ़ी थी वही हम आज पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही तो वो टीचर अपने भ्रम में रहे, और ना ही आप लोग इस भ्रम में रहिएगा कि कुछ भी करके। देखो मेरा एक ही टारगेट है, आपको पता है, मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी क्लासेस दे रहा हूँ डेली, और अनअकैडमी पे रात में 9 बजे भी मेरी डेली क्लासेस चल रही है। तो मेरा टारगेट एक ही है बच्चों, जो बच्चे मुझे यहाँ पर सुनने आते हैं, जितने भी 100 200 300 जो भी बच्चा आता है, और पूरे ऑल इंडिया से बच्चा मेरे अनअकैडमी पर रात में आता है, एक ही टारगेट है, आपको एक ही बात समझानी है, बार बार समझानी है कि अपना मेंटोर अच्छे से चूज कर, क्योंकि वही है जो आपको शेप देने वाला है। उसके अकॉर्डिंग ही, उसके ही हाथ में पेन है, आपके हाथ में पेन नहीं है अपने आप को शेप देने का। गलत मेंटोर चूज कर लिया, गलत शेप आ जाएगी। इसलिए बार बार बताता हूँ, सतर्क हो जाओ, आज के टाइम में बहुत गलती कर रहे हैं। यूट्यूब पर भरे पड़े हैं वीडियोस, और मैं देखता हूँ कोई भी कहीं से ही पढ़ने लगता है, बिना उसकी जेन्युइनिटी चेक करे कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो मेरे लेवल का है या नहीं। हो सकता है वो कंटेंट ठीक हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन हमारे लेवल का है या नहीं। वो यहाँ से पढ़ा रहा है, हम यहाँ पर है, हमें समझ आएगा क्या? हमारा लेवल यहाँ पर है, वो यहाँ पर पढ़ा रहा है, क्या हमारी समझ आएगा? क्या बेकार की बात करते हो, नहीं आएगा। और फिर कहते हो मार्क्स नहीं आ रहे हैं सर। सर हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हमें पढ़ नहीं पाते हैं। फिर आप आकर के अपनी क्वेरीज पूछते हो, सर हमसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही है, होगी कैसे बेटा? तो आज भी, अभी भी टाइम है आपके पास, 6 महीने बचे हैं, अपना इसका ब्रेन दिया है ना जो, उसका इस्तेमाल करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि आपको मार्क्स लाने हैं 100/100। एंड जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करें तो मेरा ये कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कोड क्या है बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, SAGYT। क्या कोड है बच्चा लोग? SAGYT। इस कोड को लगाएं, क्योंकि इस कोड को लगाने के बाद ही बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। विदाउट अप्लाइंग दिस कोड यू विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट। तो बच्चों जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन खरीदे, इस कोड को याद रखें। एंड एट लास्ट आई वांट टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।